today we are going to start talking about Article 21. Okay? If we are able to finish it off, then we will also start with Article 22. Okay? So even though Article 21 is huge in the sense that bare act met is only one line article, but you know that there are so many landmark cases on Article 21 which have laid down some very important fundamental rights. ठीक है, अगर आपको याद हो हमने शुरू में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था which is called the concept of implied rights, है ना. Implied rights का मतलब होता है कि they may not be explicitly given in the constitution but they very much form part of that particular provision. ठीक है, तो हमने देखा कि आर्टिकल 19 में even though it only talks about right to freedom of speech and expression, but it also includes a lot of other things. For example, freedom of press, right to stay silent, right to speak, okay, and a lot of other rights. So because of that doctrine of implied fundamental rights, Article 21 has really been expanded. Okay? Starting from 1970s, when public interest litigation as a concept became very popular in the Supreme Court, where they relaxed the understanding of who can be a litigant. That is when Article 21 received a lot of attention from the Supreme Court, and because of that, a lot of important rights, a lot of important safeguards were actually laid down in under Article 21. ठीक है, सबसे recent जो addition है इसमें वो है आपका right to privacy का, जो 2017 में a 9-judge bench of the Supreme Court in the K.S. Puttaswamy judgment, they basically said कि right to privacy is a fundamental right under Article 21. ठीक है, तो Article 21 जैसा कि आपको समझ आ रहा है, it's a very open-ended article because it talks about protection of life and personal liberty, right? तो open-ended है, आगे भी there are a lot of things that can be expanded and can be included in Article 21 as a fundamental right. ठीक है, तो very important, but exam point of view से कैसे आ सकता है, that you have to understand. ठीक है, because if you look at any commentary, probably Article 21 will have like a lot of pages on it. Okay, so our understanding and our goal would be to remember some of the important landmark judgments, क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट्स ही है जो इसमें एक्चुअली पूछे जा सकते हैं, राइट? क्योंकि आर्टिकल 21 पे अभी कोई नए राइट्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, सो यू विल नॉट रियली सी आर्टिकल 21 जनरली getting a lot of attention because of that particular area. But nevertheless, Article 21 is and will always stay important. But from an exam point of view, it may not be asked, अकेले सिर्फ Article 21 से. It may be linked to other things, but Article 21 in itself doesn't really hold importance in like a recent case law scenario. Okay? But anyway, we will come to Article 21. We'll today see some landmark cases on it, and we will see what are some of the important fundamental rights that have been developed under it. Okay? Article 21 बोलता है no person, ठीक है, मतलब कि it is available to everybody, right? No person shall be deprived of his life or personal liberty. ठीक है, दो चीजें आप किसी से नहीं ले सकते, their life and their personal liberty, except, okay, there are a few situations in which these two very precious rights can also be taken away, and those exception is except according to procedure established by law. Okay, so if the law establishes a procedure to take away somebody's life or personal liberty, then it can be done. ठीक है, तो इससे हमें ये तो पता चला कि डेथ पेनल्टी इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि you are taking away somebody's life, you are depriving somebody of their life, but it is procedure established by law. ठीक है, randomly नहीं ले रहे हो, arbitrarily नहीं ले रहे हो, it has been held to be procedure established by law, and that is why it is very much constitutional. Okay, same applies for personal liberty. ठीक है, अगर Article 21 इतना absolute होता तो फिर how can you put people in jails, right? The whole reason how you can take somebody's personal liberty is again through a procedure which has been established by law. ठीक है, अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या होगा? ठीक है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज एग्जैक्ट फ्रेज which has been debated quite a lot. ठीक है, हमने देखा था शुरू में कि this has been taken from the Japanese constitution, like the phrase, and America में in the US, because US has very strong fundamental rights. ठीक है, हम जब भी fundamental rights की बात करते हैं हम generally उसे US से ही compare करते हैं, ठीक है, because they do have a very strong jurisprudence on fundamental rights and their scope. So US में the term that is used is due process of law. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ procedure established by law is the phrase that has been employed in Article 21.
Similarly, in the US, the term is due process of law. ठीक है? तो शुरू के cases में in the 1950s, the issue was कि what is procedure established by law. ठीक है? तो शुरू में the understanding was not as refined in the 1950s. There wasn't that refined an understanding which favored a very liberal interpretation of Article 21. तो उन्होंने कहा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब होता है कि कोई भी प्रोसीजर जो लॉ ने एस्टैब्लिश किया, ठीक है, तो उसकी आप वैलिडिटी चेक नहीं करोगे. यू विल नॉट सी कि वेदर द प्रोसीजर इन इटसेल्फ इज आर्बिट्ररी और नॉट, ओके, वेदर इट इज प्रोपोर्शनल और नॉट. बट व्हाट यू विल सी इज कि वेदर अ लॉ हैज पुट इन प्लेस अ प्रोसीजर और नॉट. ठीक है, तो अगर कोई प्रोसीजर बहुत ही ड्रेकोनियन भी है, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के केस में, यू गाइज नो दैट getting a bail is very, very hard, right? Like in preventive detention laws, the regular safeguards available to criminal under trials are not available, right? So procedure established by law requires the procedure to be fair also. Okay? The procedure should be just, it should be fair, it should be reasonable, it should not be arbitrary. ठीक है, तो ये सारी जो टेस्ट है ये सुप्रीम कोर्ट ने लेटर केसेस में ले डाउन किए, स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइमरीली मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, और भी बहुत सारे कई सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जहां पे कोर्ट ने बताया कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ क्या होगा. ऐसा नहीं कि लॉ में आप कोई भी प्रोसीजर लिख दो, पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ पास कर दिया तो दैट विल बिकम प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. ठीक है, तो जो सेफगार्ड्स हैं आर्टिकल 21 के, दे आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ओके, बिकॉज नोबडी इज डिबेटिंग द फैक्ट दैट the law can actually take away somebody's life or personal liberty. But the requirement is that that procedure has to be just, fair, reasonable, and non-arbitrary. Okay. So, chalo. Now let's come to some important case laws on this. Okay. All right. Okay. Article 21 secures two rights. First is right to life. Second is right to personal liberty. Okay. Article 21 prohibits deprivation of any of these rights except according to the procedure that has been established by law. ठीक है, अब आपको पता है कि most of the fundamental rights can only be claimed against the state, right? तो आर्टिकल 21 का जो फंडामेंटल राइट है वो भी आप सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हो. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि if somebody has murdered someone, okay, then of course they have committed the act of murder which has led to the deprivation of somebody's life, but that doesn't mean that you can prosecute somebody under Article 21. Okay? Reason is as simple as this, that violation of this right by a private individual is not covered under Article 21. Okay? This was also the reason why we saw the definition in Article 12 which actually defined what a state is. Okay? तो Article 21 जो है वो आप सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट यूज कर सकते हो, but it is available to all persons. Okay? So Article 21 is available to all persons, citizens or non-citizens. अब ये थोड़ा लॉजिकल सोचने की भी बात, राइट, कि जब हम all persons बोलेंगे तो we can't mean artificial persons, right? We can only mean natural persons because of the nature of the right. अब आप किसी artificial person यानी कि किसी कंपनी या किसी कॉर्पोरेशन, you cannot take away their life, right? Like how will you take away their life? So the very concept of life and personal liberty by the very nature, it only applies to natural persons and not artificial persons. ठीक है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है समझना क्योंकि कुछ फंडामेंटल राइट्स आर्टिफिशियल पर्संस को भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आर्टिकल 14 में जो राइट टू इक्वलिटी का राइट है, that is available to artificial persons also. So a corporation can also claim that right, but Article 21 is not one of those rights. Okay. Now another question comes कि whether under Article 21 a dead person can be included or not. ठीक है, whether a dead person would be a person for the purposes of Article 21. ठीक है, तो generally Article 21 does not apply to dead persons, but dead persons do have a right to respectful or dignified burial. ठीक है, तो ये वाला जो right है, this is the fundamental right even of a dead person. Alright? अब वो एक अलग बात है कि वो enforce सिर्फ उसके legal representatives या relatives ही कर सकते हैं, but it indeed is a fundamental right. Okay. Now we come to the meaning of life. ठीक है, अब इसमें बहुत सारे केसेस हैं, हमने बहुत ही कम कुछ बहुत ही लैंडमार्क केसेस इंक्लूड किए हैं क्योंकि जनरली आर्टिकल 21 पे इतने सारे केसेस हैं that you guys will not be able to
generally cover them. And you don't have to know about the facts of every case, but you do have to know some landmark cases on some important points. ठीक है? जैसे आर्टिकल 21 जो है उसके अंदर there's a huge jurisprudence on rights of prisoners. ठीक है? Not just rights of prisoners but also rights of under trials. तो उस पे there will be a lot of judgments. ठीक है? जैसे in one of the cases of खड़क सिंह versus state of UP, जो कि right to privacy के लिए भी important है, इस केस में कोर्ट ने कहा था कि लाइफ का मतलब सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं होता है. ठीक है? लाइफ का मतलब होता है व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो. और आपको पता है कि इसी अंडरस्टैंडिंग पे देयर आर अ लॉट ऑफ राइट्स बेस्ड. फॉर एग्जांपल राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट. ठीक है? राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट इज बेस्ड ऑन द वेरी आइडिया दैट लाइफ का मतलब सिर्फ इट इज नॉट द वेरी फैक्टम ऑफ एग्जिस्टिंग, इट इज ऑल्सो अबाउट द क्वालिटी ऑफ दैट लाइफ. ठीक है? सिमिलरली सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में कोर्ट ने बोला था कि राइट टू अ पर्सन्स ट्रेडिशन, कल्चर, हेरिटेज आर आल्सो पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ. ठीक है? ये सारे जो केसेस हैं ये जनरली राइट्स ऑफ प्रिजनर्स पे हैं. जैसे सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस, इट्स अ लैंडमार्क केस ऑन प्रिजन राइट, प्रिजनर्स राइट्स. ठीक है? स्पेशली दे आल्सो टॉक्ड अबाउट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना हो सकता है बिकॉज इट वायलेट्स आर्टिकल 21 राइट्स. ओके, अब हम आते हैं कुछ ब्रॉड राइट्स पे और उसमें कौन कौन से लैंडमार्क केसेस हैं. ठीक है? तो इसमें समझने से ज्यादा याद करने का है बिकॉज दीज लैंडमार्क केसेस आर समटाइम्स आस्क्ड इन मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ अ थिंग. बट क्लैट का वो पैटर्न चेंज हो गया, सो जनरली दे डोंट आस्क दैट नाउ बट दे कुड बी आस्क्ड. ठीक है? तो सबसे पहला जो राइट है राइट टू लाइफ के अंदर विच हैज बीन लेड डाउन इज राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी. ठीक है? I hope I don't need to clarify these pointers, so I'm just going to power through this. So right to life with human dignity में we have the case of Francis Corelli versus UT of Delhi, जहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि right to live with human dignity is a part of Article 21. ठीक है? Similarly PUDR versus Union of India के केस में कोर्ट ने कहा था कि अगर आप किसी को मिनिमम वेज पे नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो that will violate their right to live with human dignity. Correct? Then we have Jija Ghosh versus Union of India. Jija Ghosh versus Union of India is actually one of the landmark cases on rights of persons with disabilities. ठीक है? So Jija Ghosh के केस में कोर्ट ने persons with disabilities के rights discuss किए थे. They discussed the rights of persons with disabilities Act 2013 और उस केस में भी उन्होंने कहा था कि right to live with human dignity is a constitutional value and a constitutional goal. ठीक है? तो प्लीज अंडरस्टैंड इसमें इतना कुछ समझने का नहीं है एज मच एज यू बीइंग एबल टू रिमेंबर विच केस एक्चुअली फॉल्स ऑन विच इशू. ठीक है? क्योंकि जनरली इस पार्ट में से क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही आ सकते हैं कि वो आपको या तो एक स्टेटमेंट देंगे और पूछेंगे कि ये किस केस में हेल्ड डाउन हुआ था, या फिर वो आपको केस दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये किस पॉइंट पर लैंडमार्क केस है. ठीक? सो दैट इज समथिंग व्हिच यू माइट हैव टू रिमेंबर. नाउ वी कम टू द सेकंड इंपॉर्टेंट implied right, that is right to reputation. ठीक है? All persons have a right to reputation and it is a part of right to life. ठीक है? ये किस केस में बोला था कोर्ट ने? सुब्रमण्यन स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सुब्रमण्यन स्वामी में अगर आपको याद हो, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कोर्ट upheld the constitutional validity of section 499 and 500 of IPC. ठीक है? किस बारे में बात करते हैं? डेफेमेशन के बारे में बात करते हैं. ठीक है? तो इस केस में कुछ पॉलिटिशियंस ने, कुछ ऑपोजिशन के लीडर्स ने, उन्होंने कोर्ट में एक पिटिशन फाइल करी थी सेइंग कि क्रिमिनल डेफेमेशन जो है दैट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19. ठीक है? उनका कहना था कि एवरीबडी हैज अ राइट टू फ्री स्पीच और फ्री सोसाइटी में डेफेमेशन शुड नॉट बी अ क्रिमिनल ऑफेंस. ठीक है? उनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि डेफेमेशन आप टॉर्ट्स में भी सू कर सकते हो, राइट? लाइक इट देयर इज अ सिविल रेमेडी अवेलेबल फॉर इट. सो दे वर ऑफ द ओपिनियन कि मेकिंग इट अ क्रिमिनल ऑफेंस will violate article 19(1)(a). ठीक है? तो कोर्ट ने उस केस में कहा कि defamation, criminal defamation does not violate a person's freedom of 19(1)(a) because it is a reasonable restriction under article 19(2). Also because this very idea that every person has a right to reputation, it is a fundamental right under article 21. ठीक है? So nobody else can claim defaming somebody as a fundamental right under 19(1)(a). ठीक है? तो सुब्रमण्यन स्वामी के केस में कोर्ट बेसिकली put forward this understanding that every person has a right to reputation as well. ठीक है?
फिर राइट टू लाइवलीहुड के कई सारे केसेस हैं, हमने एक आधी इंक्लूड किया है। ओल्गा टेलिस वर्सेस आई थिंक बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिस इज, इसके केस में कोर्ट ने कहा था कि राइट टू इंक्लूड लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लाइवलीहुड। देन यू हैव विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, अनदर लैंडमार्क, 1997 का केस है ये। जस्टिस JS वर्मा वाज द ऑथर ऑफ दिस जजमेंट। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेसेस वायलेट्स देयर राइट टू लाइफ। ठीक है, तो राइट टू लाइफ में भी उन्होंने इंक्लूड किया सेक्सुअल राइट टू places free of sexual harassment, and that is when in Vishakha the court actually gave a lot of important guidelines which were later enacted in the form of a judgment which is currently holding the place. ठीक है, Vishakha versus State of Rajasthan is another landmark case under Article 21. Then we have right to shelter. ठीक है, every person has a right to shelter. UP Awas Vikas Parishad versus Friends Cooperative Housing Society and Chameli Singh versus State of UP. ठीक है, ये दो लैंडमार्क केसेस हैं ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू शेल्टर। देन वी हैव राइट टू लिव इन अनपोल्यूटेड एनवायरनमेंट। ये हमने अभी इन्वायरमेंटल लॉ में भी डिस्कस किया था कि सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, आई एम वेरी सॉरी दिस इज नॉट अग्रवाल, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 का केस है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके बाद हजारों केसेस में अगेन दे हैव लेड डाउन द सेम पॉइंट, बट सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाज द फर्स्ट केस टू एक्चुअली ले डाउन दिस वेरी आइडिया। ठीक है, फिर राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज आल्सो अ फंडामेंटल राइट, वाज हेल्ड इन ND Jayal वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड MC Mehta वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, then we come to right to education. So as you can see, it is mostly about you remembering which case falls under what. ठीक है, इसमें समझने का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि I don't think that anybody can debate any of these rights. Like nobody can really ask कि why does right to education form part of Article 21. ठीक है, so the idea is not to understand the reasoning, because I think the reasoning is anyway very apparent on the face of it. The idea is to be able to remember the cases. ठीक है, राइट टू एजुकेशन अब अलग से आर्टिकल 21A में इंक्लूड हो गया, बट राइट टू एजुकेशन वाज ऑलवेज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, तो अगर वो 21A नहीं भी ऐड करते तो भी इन द केस ऑफ मोहिनी जैन, बंधुआ मुक्ति मोर्चा, उन्नी कृष्णन, इन ऑल ऑफ दीज केसेस इट वाज ऑलरेडी हेल्ड दैट राइट टू एजुकेशन फॉल्स अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, राइट टू हेल्थ एंड टाइमली मेडिकल एड इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। ये भी हमने एनवायरमेंटल लॉ में पढ़ा था। CERC यानी कि कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट अपहेल्ड दिस राइट। ठीक है, उस केस में एक्चुअली वो माइनिंग वर्कर्स के राइट टू हेल्थ की बात कर रहे थे, बट दे डिड से दैट राइट टू हेल्थ इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। नाउ वी कम टू वन वेरी 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 इंपॉर्टेंट राइट, और अब ये पूछ मुझे लगता है इसलिए नहीं सकते क्योंकि 2020 के पेपर में दे ऑलरेडी आस्क्ड दिस जजमेंट, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर कुछ रिसेंटली पूछा है तो उसमें आने के चांसेस कम होते हैं, बट आपको ये 3 केसेस बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। क्या IPC में भी इंपॉर्टेंट है कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई और राइट टू कमिट सुसाइड। ठीक है, राइट टू कमिट सुसाइड, राइट टू डाई कैन नॉट बी अ फंडामेंटल राइट। ओके, अब सेक्शन 309 IPC किस बारे में बात करता है ये? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज 309 IPC वेरी क्विकली? आपको नहीं भी पता, आप जो स्क्रीन पे लिखा है वो पढ़ के बहुत इजीली गेस कर सकते हो। I want answers from you. Just type it out in the chat box. What is section 309 dealing with? नहीं, suicide से क्या? What does it deal with? Okay, yeah, correct. Right. What about others? Does everybody here know what is section 309 IPC? Okay, it is attempt to commit suicide. ठीक है, 309 में लिखा हुआ है that anybody who attempts to commit suicide, they will be punishable. They can be punishable up to 1 year, right? Of course, you cannot criminalize suicide in the sense that if somebody has already died, you cannot punish them. But the attempt to commit suicide has been made punishable under the Indian Penal Code. ठीक है, तो P. Ratinam versus Union of India के केस में 1994 में, very sorry,
1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 309 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. व्हाई? बिकॉज राइट टू लाइफ उनके हिसाब से इंक्लूडेड राइट टू डेथ, एंड दिस इज व्हाई पी रतिनाम दे वर ऑफ द ओपिनियन कि 309 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है. उसके बाद एक लार्जर बेंच ने इन द ईयर 2 years later दे बेसिकली हेल्ड इन ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई. ठीक है. ज्ञान कौर में एक्चुअली I think it was the mother-in-law and the husband of a woman who committed suicide because of, I think, dowry demands. So they were basically being punished for abetment of suicide. ठीक है. तो उस केस में उनका ये आर्ग्यूमेंट था, ज्ञान कौर और उसके बेटे का, कि अगर सुसाइड खुद ही एक ऑफेंस नहीं है, क्योंकि पी रतिनाम के केस में कोर्ट ने कहा था कि अटेम्प्ट टू सुसाइड इज नॉट एन ऑफेंस. तो उनकी रीजनिंग ये थी कि अगर सुसाइड करना ही क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है तो हाउ कैन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बी एन ऑफेंस. ठीक है. तो इस कॉन्टेक्स्ट में ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कोर्ट ने कहा कि ये रीजनिंग तो बिल्कुल ही सही नहीं है, बट ऑन टॉप ऑफ इट 309 इज कॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है. तो दे ओवररूल्ड पी रतिनाम एंड दे सेड कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डेथ. ठीक है. लेकिन ऑफ कोर्स आपको भी समझ आएगा कि बहुत ही आउटडेटेड अंडरस्टैंडिंग है. मतलब अबेटमेंट टू सुसाइड शुड डेफिनेटली बी एन ऑफेंस एंड इट इज, बट अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड शुड नॉट बी एन ऑफेंस. Okay, because any person who is actually committing suicide or who actually wants to commit suicide but has failed is clearly not in the right frame of mind, right? Like they are definitely either under depression or under any other mental ailment, and they require help and not really prosecution. So 309 IPC, although it has not been held unconstitutional, so to speak, by any court till date, I mean, except P. Ratinam, but that has been overruled. लेकिन 2017 में एक एक्ट आया था, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट. ठीक है. मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में उन्होंने सेक्शन 115 में लिखा है wherein they have decriminalized suicide. ठीक है. वहां पे they basically put it कि you know anybody who attempts to commit suicide should not be a criminal offense, and they basically have decriminalized it. Okay. तो directly अभी भी 309 IPC has not been made unconstitutional, but because of 115 of Mental Health Care Act, it has now been decriminalized. ठीक है. तो बहुत ही लेजिस्लेटिव मेजर की वजह से, ऐसा नहीं कि उन्होंने इसको अमेंड कर दिया, डिलीट कर दिया, बट बिकॉज ऑफ अदर लेजिस्लेशन इट इज नो लॉन्गर अ क्रिमिनल ऑफेंस. ठीक है. सो ऑल दिस गिव्स राइज टू अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज यूथेनेशिया. ठीक है. आई होप आप सबको पता हो कि यूथेनेशिया का क्या मतलब होता है. ठीक है. यूथेनेशिया इज बेसिकली voluntary dying, like you deciding that you want to die. Okay? Not maybe you don't decide it right there, but you can actually decide that if you are ever in a vegetative state, okay, or if you are somebody who are only being made to live with the help of medical assistance and you can't really survive without that. Okay? So in that case, should it be allowed for a person to have an honorable death, right? जैसे अगर आपको पता हो कि अरुणा शॉनबॉग का बहुत ही फेमस केस था जिसकी वजह से एक्चुअली हमारे कंट्री के यूथेनेशिया लॉज चेंज हुए. ठीक है. आई होप यू हैव हर्ड दिस नेम ऑफ दिस लेडी कॉल्ड अरुणा शॉनबॉग. ठीक है. शी वाज एक्चुअली अ नर्स इन KEC in Bombay in the 1970s, I believe, and she was brutally raped by a helper of the same hospital, because of which she slipped into a coma. And she hasn't woken up since then. I mean, she died, I think in 2014 or 15, I don't remember. So her case basically highlighted that there is a need for passive euthanasia in India. ठीक है. मतलब दो टाइप के यूथेनेशिया हो सकते हैं. Could be passive, could be active. Passive का मतलब होता है कि you don't take any active steps for killing somebody. For example, if she was in a coma she was in a vegetative state for the last 40 plus years, so you don't actively kill her, you don't give her any injection or a medicine to kill, but you simply take away the life support. Okay? So whatever life support is keeping her alive in that vegetative state, you simply take that away. Okay? So that is passive euthanasia. Passive euthanasia is legal in India after the case of Common Cause versus Union of India. Okay?
Active euthanasia, on the other hand, is not legal in India, and it is still considered कि it will be very risky to allow active euthanasia. ठीक है, active euthanasia क्या होगा? Active euthanasia is when the doctors actually kill somebody. Like they feel that a person is not in the state where they will have a healthy lifestyle ever, that there's no cure for it, and they actively kill that person. ठीक है? So active euthanasia is not permissible nor legal in India, but passive euthanasia in some cases has been permitted after the common cause judgment. ठीक है, passive euthanasia को mercy killing भी बोलते हैं. ठीक है, so mercy killing या passive euthanasia has been legalized, पर सारे cases में नहीं, उसके काफी उन्होंने rules lay down किए common cause में, कि for example if somebody makes something called the living will, है ना, living will अगर किसी ने पहले ही बना दिया, where they have said कि they would want to die in such a case if they ever get to that stage, then the High Court can decide with the help of the medical team कि whether passive euthanasia should be permitted or not. ठीक है, तो passive euthanasia legal है. उसके अलावा भी there's a 2011 case of Aruna Schonberg versus Union of India, जहाँ पे अरुणा शॉनबर्ग के बिहाफ पे KEC हॉस्पिटल के स्टाफ ने passive euthanasia उनके लिए रिक्वेस्ट किया था, but that was denied by the court. Okay, but later on in 2018, well after she died naturally, Common Cause versus Union of India actually legalized passive euthanasia. ठीक है, तो right to life और right to die वाला जो एरिया है उसमें these are 3 cases that you should be knowing about. ठीक है, but as I said common cause उन्होंने अभी recently पूछा था, तो chances इस टॉपिक के आने के कम है, लेकिन हाँ आपको तब भी क्रिमिनल लॉ के पर्सपेक्टिव से you should be knowing about these judgments. Okay, all right, now we come to the next one, sentencing of death. ठीक है, अब क्योंकि हमने देखा कि राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, तो इफ यू आर टेकिंग अवे समबडीज लाइफ, देन हाउ कैन दैट बी डन? वी नो दैट कैन बी डन इफ देयर इज अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है अभी भी we have not abolished death penalty. ठीक है, death penalty has been retained for a very few cases. So for example, in the IPC, I think there are only 3-4 offenses which prescribe death penalty as a punishment. ठीक है, one is the offense of murder, second is I think waging war against India, third is I think rape, and fourth is I think dacoity, if I'm not wrong. ठीक है, I think there are only 4. Could be more, I'm not sure, but I think these 4 I know about, but I think there are only 4. So in these 4 offenses, death penalty can be one of the punishments. ठीक है, ऐसा किसी offense में नहीं है जहां पे सिर्फ death penalty ही punishment हो सकती है. ठीक है, none of the offense provides for that. It could be either death penalty or life imprisonment or whatever is mentioned in murder, rape and waging war वाले cases. तो अब हम आते हैं कि sentencing of मतलब why is death penalty constitutional? What all cases have led that? ठीक है, although currently अगर देखा जाए तो it does not really align with the modern theories of criminology, because modern theories of criminology and many of the other civilized nations have done away with death penalty. ठीक है, death penalty के खुद के काफी सारे cons हैं, pro तो actually कुछ भी नहीं है. अगर आप human rights perspective से देखो, there is no pro to death penalty, but there are a lot of cons. But we are not concerned about that. We are concerned about what all judgments led to it. ठीक है, तो there'll be 4-5 important cases which are also important under IPC. ठीक है, तो कोर्ट ने अब ये कहा है कि डेथ पेनल्टी कॉन्स्टिट्यूशनल है. ठीक है, लेकिन डेथ पेनल्टी कैन ओनली बी गिवन इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस. ठीक है, अब ये तो कोर्ट ने बच्चन सिंह के केस में कहा था, बट उसके पहले 2 और जजमेंट्स थे जहां पे कोर्ट डिड टॉक अबाउट डेथ पेनल्टी. ठीक है, इन द ईयर 1973 जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाज द फर्स्ट केस which upheld the constitutional validity of the death sentence. ठीक है, अब ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इट अप्लाइड टू द प्री 1973 सीआरपीसी. ठीक है, आई थिंक 1973 के पहले मुझे याद नहीं है कौन से ईयर का सीआरपीसी था, बट आई थिंक 1865 95 आई एम नॉट श्योर, जो भी था, whichever CRPC was in force before the 1973 CRPC came into effect, उसके अंदर उन्होंने उसके प्रोविजन पे डिसाइड किया था जगमोहन सिंह में कि डेथ पेनल्टी इज कॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है, फिर this was I think a 3-judge bench decision, but then later on a smaller bench, a 2-judge bench,
in Rajendra Prasad versus State of UP in the year 1979, in which one of the judges was Justice Krishna Iyer. उन्होंने कहा दे बेसिकली अडॉप्टेड द अबॉलिशनिस्ट अप्रोच. ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि डेथ पेनल्टी इंडिया में नहीं लगनी चाहिए, इट शुड बी अबॉलिश्ड इन इंडिया. ठीक है, बट उन्होंने एक एक्सेप्शन कार्व आउट किया. उन्होंने कहा कि सारे केसेस में डेथ पेनल्टी हटा देनी चाहिए एक्सेप्ट फॉर व्हाइट कॉलर क्राइम्स. ओके, डू यू गाइज नो व्हाट इज अ व्हाइट कॉलर क्राइम? Can you guys tell me what is a white collar crime? Can you give me some examples of it simply, like what constitutes as a white collar crime? आपको white collar blue collar का difference पता है? ठीक है, good examples. But do you guys know the difference between white collar and blue collar? ठीक है, so white collar crimes जो होते हैं वो economic crimes होते हैं, the ones that you can do because you are in a position which lets you exploit it in a work environment. ठीक है, तो blue collar jobs या blue collar activities वो होती हैं which are basically considered to be labor intensive, right? So for example, if somebody works in a factory or if somebody is a daily wage laborer, then they are into blue collar crime. Sorry, not the blue collar activities, sorry, not crime. But white collar crime is when somebody uses their position in a workplace to commit a crime. ठीक है, तो जैसे कि ट्विंकल ने कुछ एग्जांपल्स दिए, मनी लॉन्ड्रिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रज्ञा ने बताया टैक्स एवेशन. ठीक है, ये सारे और भी कई सारे इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं which are classified as white collar crimes. ठीक है, आप उसके काफी सारे एग्जांपल्स सेबी एक्ट और कंपनीज एक्ट और आई थिंक आईबीसी एंड पीएमएलए इन सारे में देख सकते हो. ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में जस्टिस कृष्णा अय्यर का ओपिनियन था कि व्हाइट कॉलर क्राइम्स के लिए हमको सिर्फ डेथ पेनल्टी रखनी चाहिए, बट फॉर एवरी अदर ऑफेंस डेथ पेनल्टी शुड बी अबॉलिश्ड. ठीक है, सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दैट वाज मेड बाय हिम. फिर नया सीआरपीसी आया 1973 में, तो उसमें जो सेक्शंस थे उनकी वैलिडिटी चैलेंज हुई बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में. तो बच्चन सिंह के केस में फाइनली कोर्ट ने अभी वाले एग्जिस्टिंग सीआरपीसी के प्रोविजंस में कहा कि डेथ पेनल्टी इज कॉन्स्टिट्यूशनल, बट दे डेवलप्ड अ डॉक्ट्रिन, दे डेवलप्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस. ठीक है, आप सबको पता होगा कि डेथ पेनल्टी हर केस में नहीं दी जा सकती. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मर्डर या रेप का केस है भी तो वहां पे और भी अदर पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं. ठीक है, डेथ पेनल्टी इज वन ऑफ द अल्टरनेटिव पनिशमेंट्स. राजेंद्र प्रसाद में कोर्ट ने कहा, अब छोटी बेंच थी तो वैसे भी ओवररूल तो कर नहीं सकते थे जगमोहन सिंह को, बट दे वर ऑफ द ओपिनियन कि डेथ पेनल्टी शुड बी अबॉलिश्ड. ठीक है, फिर फाइनली बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में इन द ईयर 1980 a 5-judge bench of the Supreme Court upheld the constitutional validity of the punishment of death and how it can be carried forward under the CRPC. ठीक है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि डेथ पेनल्टी हम सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दे सकते हैं. ठीक है, फिर उसमें उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस क्या हो सकते हैं, कैसे डिसाइड करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट. ओके, फिर लेटर ऑन इन द ईयर 1983 इन अनदर लैंडमार्क केस इन मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, कोर्ट ने बताया कि हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस कैसे डिसाइड करेंगे. ठीक है, जैसे बच्चन सिंह उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए थे कि जैसे सोशली हीनस क्राइम्स जो हैं, अगर क्राइम्स अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन हैं, ठीक है, ये सारे ऑफेंसेस को हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी मानेंगे. ठीक है, मच्छी सिंह में दे वेंट अ स्टेप फॉरवर्ड एंड दे केम अप विद अ फ्यू गाइडलाइंस फॉर द कोर्ट्स कि कोर्ट्स को कैसे डिसाइड करना चाहिए कि किसी केस में रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टांसेस है कि नहीं. ठीक है, तो मच्छी सिंह में कोर्ट ने सजेस्ट किया कि a balance sheet of aggravating and mitigating factors should be formed. ठीक है, मतलब कि आप जब डेथ पेनल्टी दोगे तो आप क्रिमिनल को देखोगे. ठीक है, you will look at the crime also कि what is the crime the person has committed, like what is the impact of this crime on the society, whether it is what heinous or not. ठीक है, लेकिन yes, Karishma, I've turned off my camera because there is no power at my place. Okay, but I hope you can see the screen, right? आपको स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, ठीक है ना? मेरा वाईफाई मेरा फोन से कनेक्टेड है, so the connection is not that great. Okay, हाँ, तो what I was saying was कि मच्छी सिंह के केस में कोर्ट ने कहा कि एग्रीवेटिंग और मिटिगेटिंग फैक्टर्स हम ड्रॉ करेंगे. ठीक है, हम क्रिमिनल को देखेंगे, क्रिमिनल की क्या प्रोफाइल है, उनका क्या बैकग्राउंड है,
what kind of a family and society do they come from, ठीक है. तो उस हिसाब से कोर्ट बताएगा कि क्या एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं और क्या मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है. मिटिगेटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स होंगे जो क्रिमिनल यानी कि जो अक्यूज्ड है उसके फेवर में होंगे, है ना. मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं विच हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाई दिस पर्सन कमिटेड द क्राइम, ठीक है. फॉर एग्जांपल, इफ समबडी kills someone, if they commit murder in a fit of rage because they are so angry that they committed murder, then the court may look into his background, ki why is this person acting like this, ठीक है. If there are instances of the fact that the person was abused in the childhood, or the person is not very educated, he comes from a different social background, so all these factors will weigh in the favor of the criminal, ठीक है. तो मच्छी सिंह में उन्होंने यही चीज सजेस्ट की कि आप क्रिमिनल की प्रोफाइलिंग करोगे, आप देखोगे कि aggravating factors क्या है which make his crime more heinous, और वो which work in against him, and what are the mitigating. आप उनको बैलेंस करके देखोगे कि whether there's any requirement for giving death penalty or not. So Machi Singh, a very important judgment because it actually gave the guidelines. Okay. Twinkle, I don't remember, but I think Machi Singh was a 3-judge bench decision. ठीक है, मुझे याद नहीं, आप कंफर्म कर लेना, बट मुझे लगता है या तो 3 जज था या 5 जज था. आई थिंक इट वाज 3 जज बेंच. मतलब एनीवे वो बच्चन सिंह को ओवररूल नहीं कर रहे थे, वो बस एक्सप्लेन कर रहे थे बच्चन सिंह में रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन जो दी हुई थी. फिर उसके बाद एक और केस मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है क्योंकि वो जनरली आप आईपीसी में पढ़ते हो. दैट इज द केस ऑफ मिठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है. आपने सुना होगा इस केस के बारे में. ये आर्टिकल 21 से उतना रिलेटेड नहीं है, इसीलिए वी डिडंट टॉक अबाउट इट. बट मिठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में 303 आईपीसी वाज हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है. क्यों? क्योंकि 303 आईपीसी जो है ये बात करता था दैट इफ अ पर्सन इज अ लाइफ कॉन्विक्ट, ठीक है. अगर कोई लाइफ कॉन्विक्ट है, मतलब किसी को अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया हुआ है एंड द पर्सन इज इन जेल, if that person commits murder in jail, ठीक है, then he will be given death penalty, ठीक है. कोई alternate punishment नहीं. Only punishment that was prescribed in 303 IPC was death penalty, ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट ने मिठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, ठीक है. क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 बात करता है कि एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ. अगर आपको किसी को अनइक्वली ट्रीट करना है, अगर आपको किसी के लिए डिफरेंट लॉज बनाने हैं, तो आपको क्या सेटिस्फाई करना पड़ता है? आपको रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट सेटिस्फाई करना पड़ता है ना. कि आप ये जो डिफरेंट ट्रीटमेंट अगर किसी को दे रहे हो तो उसका क्या रीजन है, क्या उसका रीजनेबल क्लासिफिकेशन है या नहीं, ठीक है. तो जो हमने जो टेस्ट देखा था कि वेदर इट इज रीजनेबल क्लासिफिकेशन और नॉट, वेदर इट हैज नेक्सस टू द ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग sought to be achieved or not, ठीक है. तो उसको देख के उन्होंने कहा कि there is no difference between a person committing a murder in general, like outside the prison, and a person committing murder inside the prison, ठीक है. तो आप उसके लिए डिफरेंशियल पनिशमेंट नहीं रख सकते, ठीक है. और डेथ पेनल्टी कभी भी एक्सक्लूसिव पनिशमेंट नहीं हो सकती है. मतलब किसी ऑफेंस में ऐसा नहीं हो सकता है कि उसकी इकलौती पनिशमेंट, द ओनली पनिशमेंट दैट कैन बी गिवन अंडर इट इज डेथ पेनल्टी. ऑलराइट. तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि 303 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है. कोर्ट के पास हमेशा डिस्क्रेशन होना चाहिए डिसाइड करने का कि कोई भी जो केस है क्या वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर में फॉल हो रहा है या नहीं, ठीक है. 303 में that question never comes because the courts and the judges will never have the discretion because it mandatorily prescribes death penalty as a punishment. So that is why 303 has been struck down. Okay. Sure. I hope this is clear till now, because now we are moving on to the second facet of Article 21, that is right to personal liberty. किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं. ठीक है. राइट टू लाइफ में और भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही केसेस हैं, बट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू रिमेंबर कि आपको वो कमेंट्री में नहीं पढ़ना है. You will get to answer them and practice them in your MCQs, in your previous year questions. Okay, so that will be more beneficial to you because Article 21 is huge and it is not advisable to read the entirety of it, मतलब commentary वगैरह से. But आपको competitive exam के point of view से prepare करना है, so this much is sufficient. Okay.
Now we come to the second part, that is right to personal liberty. ठीक है, अब right to personal liberty मैंने जैसा कि आपको बताया कि शुरू के जो केसेस हुआ करते थे 1950s पर्टिकुलरली, उस टाइम पे द वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिबर्टी और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ दैट वाज नॉट वेरी रिफाइंड. ठीक है, आपको पता है 1970s was the time wherein the Supreme Court actually very actively and very liberally started interpreting articles 14, 19 and 21. ठीक है, it was also in the case of Menka Gandhi when the court made a connection कि fundamental rights exclusive नहीं होते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 19 में अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो आर्टिकल 14 से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, है ना. ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक केस में 14, 19 और 21 तीनों अप्लाई नहीं हो रहे. ओके, सो ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि 14, 19 and 21 are connected to each other, they are mutually inclusive of each other, was developed in the 1970s. ठीक है, उसके पहले तक आर्टिकल 21 also received थोड़ा सा narrow interpretation. ठीक है, कि पर्सनल लिबर्टी क्या होती है. So personal liberty in itself was interpreted very very narrowly. ठीक है, उन्होंने पर्सनल लिबर्टी को बहुत ही लिटरली कंस्ट्रू किया कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब है कि nobody is throwing you in jail. Okay, मतलब you are just not being confined to a place physically. That is how they interpreted liberty in A.K. Gopalan versus State of Madras. ठीक है, A.K. गोपालन के केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो था 1950 का, उसके कुछ प्रोविजंस को चैलेंज किया गया था क्योंकि इसमें जो पेटिशनर थे A.K. गोपालन, he was detained under one of the preventive detention laws of 1950. ठीक है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट बेसिकली टुक अ वेरी नैरो व्यू और उन्होंने कहा कि लिबर्टी इज ओनली फिजिकल लिबर्टी. ठीक है, इसका मतलब है कि लिबर्टी डज नॉट इंक्लूड एनीथिंग मोर देन द लिबर्टी ऑफ द फिजिकल बॉडी. और उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है उसको भी उन्होंने बहुत ही नैरोली इंटरप्रेट किया. उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामेंट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950 बना दिया है और उसके अंदर इफ दे आर अलाउइंग पीपल टू बी डिटेन, देन दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. ठीक है, क्या वो प्रोसीजर फेयर है, जस्ट है, नॉन आर्बिट्रेरी है, रीजनेबल है, ये सब A.K. गोपालन में उन्होंने नहीं देखा. उन्होंने कहा कि एज लॉन्ग एज द पार्लियामेंट हैज मेड अ लॉ, ठीक है, इफ इट इज एम्पावर्ड टू डू दैट, इफ इट इज कॉम्पिटेंट टू डू दैट, देन दैट इज अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. ठीक है, उन्होंने बहुत ही लिटरली सारा कुछ अब आपको पता है कि ये ऑफ कोर्स सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, स्पेशली आफ्टर मेनका गांधी, जहां पे कोर्ट ने कई बार और उसके बाद भी क्लैरिफाई किया कि लाइफ या पर्सनल लिबर्टी ले रहे हो वो जस्ट फेयर और रीजनेबल एंड नॉन आर्बिट्ररी प्रोसीजर होना चाहिए. ठीक है, तो जो हमने आर्टिकल 19 में आर्बिट्रेरीनेस का टेस्ट देखा था, आर्टिकल 14 में जो टेस्ट देखा था, ऑल ऑफ दोस आल्सो अप्लाई ऑन आर्टिकल 21. ठीक है, हाँ, तो A.K. गोपालन के बाद खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट एक्सेप्ट दिस नैरो इंटरप्रिटेशन. ठीक है, खड़क सिंह वाज आल्सो द केस वेयर इन द सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली was in the favor of right to privacy. So खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में कोर्ट ने कहा था कि पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी लिटरली इंटरप्रेटेड. ठीक है, मतलब उसका आप नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हो क्योंकि इस केस में एक्चुअली इशू ये था कि खड़क सिंह वाज एक्चुअली अ सस्पेक्ट. ठीक है, पुलिस वाज ऑफ द ओपिनियन कि खड़क सिंह ने कुछ तो किया है, ही इज इन्वॉल्व्ड इन सम काइंड ऑफ अ क्रिमिनल एक्टिविटी. तो वो क्या करते थे, उनके पास इनफ एविडेंस नहीं था टू एक्चुअली अरेस्ट खड़क सिंह और टू टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम. सो व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज दे यूज्ड टू have surveillance on him. ठीक है, for example they used to have police officers following him, they were guarding his house at night, they were visiting his house, okay, all of those things. तो खड़क सिंह के केस में कोर्ट ने कहा कि इवन दो आपने उसकी पर्सनल लिबर्टी नहीं ली, ठीक है, आपने उसे जेल में नहीं डाला है, सो इट इज नॉट वायलेशन ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी, बट पर्सनल लिबर्टी का सिर्फ फिजिकल लिबर्टी से मतलब नहीं होता. ठीक है, इफ यू आर फॉलोइंग समबडी, इफ यू आर पुटिंग सर्वेलेंस ऑन देम, that also means that you are violating their personal liberty. ठीक है, तो इस केस में कोर्ट ने कहा था कि regulation authorizing domiciliary visits also violate personal liberty. ठीक है, तो आप सिर्फ physical liberty ही नहीं, but if you are constraining somebody in any manner, be it physical or be it psychological, all of that will construe as a violation of personal liberty. ठीक है,
फिर मेनका गांधी का केस आया। मेनका गांधी का केस आई होप आप सबको पता हो, इट वाज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट जजमेंट, जो आई थिंक आपके लैंडमार्क केस बुक में भी होगा, आप वहां से और भी पढ़ सकते हो। बट मेनका गांधी में बहुत ही सिंपल सा इशू था, ठीक है। मेनका गांधी में क्या प्रॉब्लम थी कि जो मेनका गांधी थी, मतलब अभी भी हैं, बट सो बेसिकली शी had to travel to some country outside India, and before she could do that, her passport was impounded. ठीक है, passport was impounded by the passport authorities. ठीक है, उन्होंने उनका पासपोर्ट ही ले लिया। तो मेनका गांधी basically went to the Supreme Court under Article 32 saying कि right to travel abroad is part of her personal life and liberty. ओके, इसीलिए पासपोर्ट अथॉरिटीज ने जो उनका पासपोर्ट इंपाउंड कर दिया है बिना किसी रीजन के, बिना कोई उनको रीजन बताए कि उनका पासपोर्ट उनसे क्यों लिया जा रहा है, दैट विल अमाउंट टू वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। ठीक है, क्योंकि शी हैज द लिबर्टी टू गो अब्रॉड इफ शी वांट्स। ठीक है, दैट इज हर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। सो इफ द पासपोर्ट अथॉरिटीज आर डूइंग दैट इलीगली, ठीक है, क्योंकि अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के थ्रू करेंगे तो दैट कैन बी डन। ऐसा तो है नहीं कि किसी का आप पासपोर्ट नहीं ले सकते, बट दैट हैज टू बी डन बाय द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। दैट प्रोसीजर शुड बी जस्ट, फेयर, रीजनेबल, नॉन आर्बिट्ररी, एटसेट्रा। ठीक है, तो मेनका गांधी के केस में 7 जज बेंच बैठी थी और उन्होंने पर्सनल लिबर्टी को बहुत ही वाइड मीनिंग दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें बोली थी उन्होंने ये भी कहा कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, तो इस केस में कोर्ट ने बेसिकली they highlighted the importance of the golden triangle. 14, 19 and 21 are interconnected. ठीक है, then they also said कि freedom of 19(1) are included in article 21 as well. ठीक है, 19(1) में हमने जितनी freedoms देखी थी, 6 freedoms, freedom of speech and expression, freedom to assemble peacefully, freedom to form association, to reside and settle anywhere in India, to travel anywhere in India, to have any profession, trade, whatever. All of these form part of article 21 as well. ठीक है, क्योंकि राइट टू लाइफ का ही पार्ट है ये सारे, इसीलिए कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ओके, तो कोर्ट ने इस केस में कहा था, एंड कोर्ट आल्सो वेंट इनटू द इशू ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, तो मैंने आपको जो भी बातें बताई है कि प्रोसीजर फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, ये सारा कुछ फॉर द फर्स्ट टाइम मेनका गांधी के केस में ही कोर्ट ने बोला था। ठीक है, कोर्ट ने कहा था कि इवन दो हमने इंडिया में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टर्म, वेरी ट्रू, क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो टर्म है उसको यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे इंटरप्रेट किया है कि ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है कि जो प्रोसेस है वो फेयर होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, नॉन आर्बिट्ररी होनी चाहिए। ओके, तो कोर्ट ने कहा कि इवन तो हमने वो टर्म यूज नहीं किया है, लेकिन इंडिया में भी जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है उसका यही मतलब होता है। ठीक है, कि जो प्रोसीजर है वो अनजस्ट नहीं हो सकता, वो अनफेयर नहीं हो सकता, ठीक है, वो अनरीजनेबल नहीं हो सकता। तो क्योंकि इस केस में सेक्शन 10(1)(c), if I'm not wrong, 10(1)(c) of the Passports Act allowed the passport authorities to impound the passport. ठीक है, तो 10(1)(c) ऑलरेडी बोलता था कि आप इंपाउंड कर सकते हो, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि यहाँ पे जो पासपोर्ट अथॉरिटीज हैं वो ना तो कोई रीजन देते हैं कि क्यों आप पासपोर्ट किसी का ले रहे हो, नाइदर डू दे फॉलो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, तो इस केस में कोर्ट ने कहा था कि आप किसी की पर्सनल लिबर्टी सिर्फ एक जस्ट, फेयर, रीजनेबल, नॉन आर्बिट्ररी प्रोसीजर से ही ले सकते हो। ओके, सो द कोर्ट हेल्ड दिस टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन इस केस में मेनका गांधी को रिलीफ तब भी नहीं मिला था। ठीक है, क्योंकि कोर्ट ने इस केस के फिर फैक्ट्स देखे कि पासपोर्ट अथॉरिटीज के पास इनफ रीजन था कि नहीं उनका पासपोर्ट इंपाउंड करने का, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेनका गांधी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंशन था, जो एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उन्होंने कहा कि शी वाज गिवन नो हियरिंग। ठीक है, मतलब कि पासपोर्ट अथॉरिटीज ने ना तो उनको कोई रीजन दिए, ना ही उन्हें कोई मौका दिया, दे डिडंट इवन गिव हर एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। ठीक है, उन्होंने उनको अपना रिप्रेजेंटेशन देने का कोई मौका नहीं दिया कि उनका पासपोर्ट क्यों इंपाउंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पता हो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो भी आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 का पार्ट है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट?
पहला क्या होता है, डॉक्ट्रिन अगेंस्ट बायस, है ना, ये बोलती है कि नोबडी शुड बी अ जज इन देयर ओन केस, ठीक है, मतलब अगर आप किसी मैटर में इन्वॉल्व हो तो आप उस मैटर में जज भी नहीं हो सकते, ठीक है ना, आप उसी चीज को डिसाइड नहीं कर सकते बिकॉज यू आर एन इंटरेस्टेड पार्टी, ठीक है। दूसरा बोलता है अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, ठीक है, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, यानी कि हियर द अदर साइड। तो उनका, मेनका गांधी का एलिगेशन था कि हर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आर वायलेटेड बिकॉज शी वाज नॉट गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, ठीक है। तो कोर्ट ने इस केस में उन्होंने उनको रिलीफ नहीं दिया, एक्चुअली उनका पासपोर्ट उन्हें उस टाइम वापस नहीं मिला था, क्योंकि कोर्ट केम अप विद सम कॉन्सेप्ट कॉल्ड पोस्ट डिसिशनल हियरिंग, ठीक है। और पोस्ट डिसिजनल हियरिंग इज अ वेरी वैलिड फॉर्म ऑफ पीएनजे, है ना, मतलब अगर आप किसी को पोस्ट डिसिजनल हियरिंग दे रहे हो तो वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट नहीं करता है एक्चुअली, ठीक है। पोस्ट डिसिजनल हियरिंग क्या होता है कि you give somebody the be heard after a decision has been taken, ठीक है। जैसे इस केस में her passport was impounded but she will be given an opportunity to be heard after the passport authorities have made that decision, ठीक है, not before it. तो providing for post decisional hearing was also laid down in मेनका गांधी's case, ठीक है। इसलिए मेनका गांधी को तब रिलीफ नहीं मिला था, बट कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट अथॉरिटीज को उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी टू प्रेजेंट हर केस एज टू व्हाई हर पासपोर्ट शुड बी रिटर्न टू हर, ठीक है। तो मेनका गांधी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस so far as Article 21 is concerned, personal liberty is concerned, procedure established by law is concerned, and it is also important under administrative law, ठीक है। ओके, नाउ वी कम टू राइट टू प्रिवेसी। राइट टू प्रिवेसी पे क्वेश्चंस आने के चांसेस थोड़े कम इसीलिए हैं क्योंकि के.एस. पुट्टास्वामी का केस वाज ऑलरेडी आस्क्ड इन द 2020 पेपर, ठीक है, उससे काफी डिटेल्ड क्वेश्चंस आए थे, बट हाँ आपको पता तब भी होना चाहिए ऑफ कोर्स, ठीक है। आपको पता है राइट टू प्रिवेसी इज नाउ अ फंडामेंटल राइट, है ना, लेकिन इसके पहले तक यानी कि 2017 के पहले तक राइट टू प्रिवेसी वाज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। ऑल्दो कई सारे जजमेंट्स थे सुप्रीम कोर्ट के जहां पे उन्होंने कहा कि राइट टू प्रिवेसी शुड बी अ फंडामेंटल राइट, बट क्योंकि लार्जर बेंच डिसीजंस थे, स्पेशली ये दो, एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद एंड खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इन दो केसेस में कोर्ट ने कहा था, लार्जर बेंच एज यू कैन सी 8 जज एंड 6 जज, दैट फंडामेंटल राइट्स डू नॉट इंक्लूड राइट टू प्रिवेसी, ठीक है। उन्होंने कहा कि राइट टू प्रिवेसी इंपॉर्टेंट है बट उसका स्टेटस फंडामेंटल राइट जितना नहीं है, ठीक है, मतलब वो आर्टिकल 21 के अंदर कवर नहीं होता है। तो बाद में जो छोटे बेंच के डिसीजंस आए भी और कई सारे थे जहां पे कोर्ट ने एक्चुअली कहा कि राइट टू प्राइवेसी शुड बी अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, बट बिकॉज देयर वाजंट अ लार्जर बेंच डिसीजन दिस इज व्हाई दिस वाज नॉट बाइंडिंग, ठीक है। इसीलिए आप देख सकते हो कि इसको ओवर रूल करने के लिए 9 जज बेंच हैड टू सिट बिकॉज दे हैड टू ओवर रूल एमपी शर्मा व्हिच वाज एन 8 जज बेंच डिसीजन, ठीक है। तो एमपी शर्मा एंड खड़क सिंह आर नाउ overruled by the K.S. Puttaswamy judgment, ठीक है। गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये दो बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स थे जहां पे कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को डिस्कस किया था और उन्होंने सजेस्ट किया था कि दिस शुड बी अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। सो फाइनली जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 9 जज बेंच हेल्ड राइट टू प्राइवेसी एज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, ठीक है। पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस भी इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का केस है ना, कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं या फिर जो कंटेस्टेंट्स होते हैं जो इलेक्शंस में लड़ने वाले हैं, आपको उनके एंटीसीडेंट्स का पता होना, ठीक है, कि उनका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। ये हमने आर्टिकल 19 में भी देखा था, राइट। आर्टिकल 19 में हमने देखा था कि ये फंडामेंटल राइट होता है टू नो अबाउट द एंटीसीडेंट्स ऑफ द पीपल हु आर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, राइट। तो पीएससीएल के केस में भी कोर्ट ने यही बोला था कि asking somebody to declare about their criminal antecedents is not violation of right to privacy, ठीक है। मतलब a candidate who is fighting the elections, they cannot come and say that we cannot disclose our criminal antecedent because it will violate right to privacy, ठीक है, क्योंकि पीयूसीएल के केस में कोर्ट ने कहा कि इस बारे में privacy नहीं हो सकती है, and also because it is a fundamental right under 19(1)(a, it is the right of the citizens
to know about the people who they would be, voting for. So another important judgment. ठीक है, अब केस पुट्टास्वामी बहुत बड़ा केस है, आपकी केस बुक में दिया भी हुआ है, आप वहां से पढ़ोगे वैसे तो, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो केस पुट्टास्वामी में कोर्ट ने बोले. कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 एंड इट इज पार्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी. ठीक है, फिर कोर्ट ने कहा कि लेकिन राइट टू प्रिवेसी एब्सोल्यूट राइट नहीं है ना, कोई भी फंडामेंटल राइट इनफैक्ट एब्सोल्यूट नहीं है, एंड इट्स एनक्रोचमेंट विल हैव टू सैटिस्फाई परमिसिबल रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है, कोर्ट ने कहा कि इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी इज अ फैसेट ऑफ राइट टू प्राइवेसी, यानी कि अ पर्सन शुड हैव द राइट टू प्रोटेक्ट देयर इंफॉर्मेशन, एंड दे आल्सो टॉक्ड अबाउट डेटा प्रोटेक्शन. ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन आपको पता है कि बहुत ही रीसेंट इंपॉर्टेंट इशू है, बिकॉज इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन लॉज नहीं है, राइट. अभी पार्लियामेंट आई बिलीव वाज ड्राफ्टिंग वन, बट अभी उन्होंने रिसेंटली उसको स्क्रैप कर दिया एंड दे लाइक हम दोबारा बनाएंगे. ठीक है, तो डेटा प्रोटेक्शन के लॉज हमारी कंट्री में नहीं है, यानी कि हमारा जो डेटा है वो कौन कैसे यूज कर सकता है, वो कब तक स्टोर कर सकते हैं, वो किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, क्या गवर्नमेंट उस डेटा को मांग सकती है. ठीक, ये सारे जो इश्यूज हैं ये सारे भी राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है. ठीक है, तो डेटा प्रोटेक्शन रिजीम के बारे में भी केएस पुट्टास्वामी में काफी डिस्कशन हुआ था, एंड दे वर ऑफ द अंडरस्टैंडिंग दैट इंडिया शुड हैव अ डेटा प्रोटेक्शन लॉ. ठीक है, सो डेटा प्रोटेक्शन लॉ के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, स्पेशली क्योंकि recently the Supreme Court done away with the draft that they were preparing. ठीक है, they are of the opinion कि हम दोबारा से we will start the process of developing a data protection law. So you should be following up on that. ठीक है, अब हम आते हैं राइट टू पर्सनल लिबर्टी पे. एक और केस है मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल, जहां पे कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी तो होता है लोगों के पास, लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है. इस केस में एक्चुअली इशू ये था कि मिस्टर एक्स जो थे ही वाज HIV पॉजिटिव. ठीक है, और ही वाज एंगेज्ड एंड ही वाज अबाउट टू बी मैरिड. तो जो हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल जी, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन कि मिस्टर एक्स इज HIV पॉजिटिव, दे कम्युनिकेटेड दिस इंफॉर्मेशन टू हिज फियांसे टू प्रोटेक्ट हर लाइफ. ठीक है, तो इस केस में मिस्टर एक्स सूड हॉस्पिटल जेड एंड दे सेड कि उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है. एवरी पर्सन हैज अ राइट टू प्रोटेक्ट देयर मेडिकल हिस्ट्री एंड द हॉस्पिटल कुड नॉट हैव डिस्क्लोज्ड इट. तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, स्पेशली अगर किसी और की राइट टू लाइफ उससे अफेक्ट होगी. ठीक है, तो इसीलिए कोर्ट ने इस केस में बोला कि यू डू नॉट हैव अ राइट टू प्राइवेसी बिकॉज सच इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड. ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट fundamental right under personal liberty is the right to make reproductive choices. ठीक है, and this is very important for you because अभी recently last month में there were some 2-3 judgments on this very matter. ठीक है, about reproductive autonomy, कि in what cases does a woman has reproductive autonomy, जिसका मतलब obviously है कि we are talking about abortion. और अगर हम अबॉर्शन की बात करें तो आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पता होना चाहिए. ठीक है, ये आपका होमवर्क है. वैसे आपने थोड़ा सा ये आई थिंक IPC में पढ़ा होगा, बट आई एम आस्किंग यू कि आपके पास अभी 3-4 दिन की छुट्टियां होंगी, प्लीज गो एंड रीड अबाउट द MTP एक्ट, स्पेशली क्लब्ड विद 2021 के अमेंडमेंट्स. ठीक है, मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देती हूँ, बट मैं आई वॉन्ट यू टू गो बैक एंड रीड इट, क्योंकि आप इस पे 2-3 केसेस पढ़ोगे तो यू शुड नो, क्योंकि प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकता है इस बार बिकॉज देयर आर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स. ठीक है, बट बिफोर वी कम टू दैट, सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ही लैंडमार्क केस में कोर्ट ने कहा था कि अ वुमन्स राइट टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस फॉर हरसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ राइट टू पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21. ठीक है, तो अ वुमन हैज द राइट टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस एंड दैट इंक्लूड्स द राइट टू चूज अबॉर्शन. ठीक है, अब हम आते हैं अबॉर्शन के इशू पे, बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच यू विल बी कवरिंग इन केस लॉस. ठीक है, अब वेदर अबॉर्शन इज लीगल इन इंडिया और नॉट, द आंसर इज यस. ठीक है, ऑल्दो आप जब 312 से लेके आई थिंक 318 या 19, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली IPC का, ये एक्चुअली बात करता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की, है ना, कि फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी फोर्सफुली टर्मिनेट समबडी प्रेगनेंसी, or if they use violent methods, or if they abandon a child, etc. etc. तो उसकी punishments यहाँ पे prescribed. ठीक है, तो अगर हम सिर्फ IPC को देखें तो आपको लग सकता है कि if a woman terminates her own child,
then she could be punishable under IPC. Yeah, that is very much correct. She could be. But the exception to that is the Medical Termination of Pregnancy Act, okay, which allows for termination of pregnancy, but there are certain limits. ठीक है, तो MTP Act आपको पता होना चाहिए, क्योंकि MTP Act आपको बताता है कि up to what limits is medical termination of pregnancy permitted in India and on what conditions, कि क्या conditions होने चाहिए. ठीक है, तो आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, और आपको पढ़ना चाहिए. 2021 अमेंडमेंट जो है इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि इट हैज लिबरलाइज द लॉ फर्दर. ओके, MTP एक्ट में बेसिकली ये दिया हुआ है कि इफ अ वुमन इज प्रेग्नेंट अप टू 12 वीक्स, ठीक है, देन शी कैन गेट एन अबॉर्शन बाय द कंसल्टेशन ऑफ वन मेडिकल प्रैक्टिशनर. ठीक है, उसमें उन्होंने कुछ रूल्स दिए कि आप कब करा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज अ केस ऑफ रेप, or if it is a case of failure of contraceptives, or if it will, it will cause grave injury to the mother's mental or physical health. ठीक है, तो इस टाइप के केसेस में up to 12 weeks abortion is permitted by the consultation of one doctor. ठीक है, after that 12 to 24 weeks it is permissible after the consultation of two doctors. ठीक है, उसके भी रूल्स है कि if it causes grave injury to mother's physical mental health, or if there's a failure of contraceptive, if it is a rape case, or for example, if it is a case wherein the child has such deformities that, if the child is born, then they will not have a healthy life. ठीक है, और भी कई सारे. तो 2021 के अमेंडमेंट में कोर्ट ने क्या किया कि पहले जो लॉ था वो मैरिड और अनमैरिड वुमेन के केस में इट यूज्ड टू डिफरेंशिएट थोड़ा. ठीक है, तो अभी दे हैव लिबरलाइज्ड इट, दे हैव मेड इट very facially neutral for married and unmarried women, and they have changed the terminology a little bit. ठीक है, तो आपका होमवर्क है कि आप थोड़ा सा इस पे पढ़ें. There are a few good articles you can find on Live Law, Bar and Bench, SEC online. ठीक है, किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म से आप एक बार MTP एक्ट के बारे में पढ़ लेना. ठीक है, उसके जो MTP रूल्स है ना वो भी देख लेना, क्योंकि अभी रिसेंटली वो रूल्स के ऊपर ही केस आया था wherein the court permitted a woman to abort her fetus even after 24 weeks. ठीक है, reason why they allowed her was because she made an application before 24 weeks only, but the court did not hear the matter. That's not her fault. ठीक है, and she was an unmarried woman, so in her case the court permitted her, even though the rules of MTP Act do not allow that exception to an unmarried woman. Even then the court allowed it, because the court said that after the 2021 amendments, the Parent Act, yani MTP Act, that has stopped making any discrimination between married and unmarried women. So this cannot be denied on the basis of marital status. Okay. Yeah, Twinkle, I think you guys should read about Roe versus Wade also. Okay, because we are on the issue of abortion and you guys will be reading case laws on it, which could be important. You need to know about a few cases of the US also, because in the start of this year, unfortunately, the US Supreme Court overruled Roe versus Wade. Okay, क्या है Roe versus Wade? Roe versus Wade was, I think, 1971 का judgment of the US Supreme Court, जहाँ पे court, said that abortion is a fundamental right. ठीक है, और भी उन्होंने कई सारी चीजें बोली थी, उनकी रीजनिंग और भी बहुत अलग थी. उसके बाद आया आपका Planned Parenthood versus Casey. ठीक है, another very important judgment in the 90s, जहाँ पे कोर्ट ने अगेन दे स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ रो वर्सेस वेड. ठीक है, तो ये दो जो केसेस हैं ये सुप्रीम कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट थे, और इवन इंडिया में भी, क्योंकि इन्हीं केसेस की रीजनिंग के बेसिस पे इंडिया में अबॉर्शन इज लीगल बिकॉज ऑफ रो वर्सेस वेड एंड प्लान्ड पेरेंटहुड वर्सेस केसी. ठीक है, लेकिन नाउ बिकॉज आपको इसके लिए बहुत सारा बैकग्राउंड पता होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि यूएस सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पे जो जजेस के अपॉइंटमेंट होते हैं वो बहुत डिफरेंट है इंडियन सुप्रीम कोर्ट से. ठीक है, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है क्या कंडीशंस हैं अपॉइंटमेंट की और कॉलेजियम सिस्टम कैसे डिसाइड करना है. ठीक है, मतलब कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स नहीं होते हैं. ठीक है, जैसे आज अगर मोदी जी की सरकार है तो वो डिसाइड नहीं कर सकते कि हमको इस इंसान को अपॉइंट करना है. ठीक है, द कॉलेजियम सिस्टम डिसाइड्स एंड द अपॉइंटमेंट्स आर बाय एंड लार्ज एपॉलिटिकल. ठीक है, मतलब कॉलेजियम सिस्टम की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट्स फेयर, आई एम जस्ट सेइंग कि यहाँ पे हमारे यहाँ डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिक जैसा वो डिविजन नहीं है कि किस जज की क्या आइडियोलॉजी है. ठीक है, वहां पे जजेस की बहुत ही क्लियर आइडियोलॉजी होती है एंड दे डोंट हाइड इट. इंडिया में यू कैन डू दैट, राइट? मतलब यू कैन फाइंड आउट कि विच जज इज लिबरल, विच जज इज नॉट, बेस्ड ऑन देयर जजमेंट्स, नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आपको पता है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं. ठीक है,
तो यूएस सुप्रीम कोर्ट में जो अभी करंट सुप्रीम कोर्ट की उनकी जो स्ट्रेंथ है वो इट इज राइट लीनिंग, ठीक है. सो दे आर राइट लीनिंग एंड दिस इज बाय दे ओवरटर्न्ड रो वर्सेस वेड इन द केस ऑफ डॉब्स वर्सेस जैक्सन, ठीक है, अभी जनवरी 2022 में, ठीक है. उन्होंने क्या ओवररूल किया, उन्होंने ये नहीं बोला है कि अबॉर्शन फंडामेंटल राइट नहीं है, उन्होंने कहा है कि स्टेट्स डिसाइड करेंगे कि उन्हें अबॉर्शन परमिट करना है कि नहीं करना है और कितना परमिट करना है, कितनी लिमिट तक परमिट करना है, ठीक है. अभी तक ऐसा नहीं था. रो वर्सेस वेड gave protection to the entire United States of America and it did not depend on the states, ठीक है. क्योंकि यूएस में उनका जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो काफी डिफरेंट है. मतलब कि जैसे आप अपने सेंटर स्टेट रिलेशन समझते हो कि जैसे इंडिया है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, स्टेट ऑफ राजस्थान है. अब ऐसा तो होगा नहीं कि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के अपने खुद के अलग लॉज होंगे, है ना. अलग हो सकते हैं अगर वो स्टेट लिस्ट में फॉल करते हैं, बट दे कैन नॉट बी कि एमपी में अबॉर्शन अलाउड है, यूपी में नहीं है, ठीक है. ऐसा नहीं हो सकता हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा जो यूनिटरी जो हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी डिफरेंट, ठीक है. सो यूएस में अब उन्होंने क्या बोला है कि स्टेट्स डिसाइड करेंगे, है ना. स्टेट्स के ऊपर है कि उन्हें अबॉर्शन देना है, राइट कि नहीं देना है, उन्हें कितने टाइम तक परमिट करना है, और अगर उन्हें नहीं परमिट करना है तो वो दैट कैन ऑल्सो बी डन, ठीक है. सो डॉब्स वर्सेस जैक्सन इज बेसिकली डन दैट. So now you guys should definitely follow up on this. हम तो बाद में करेंगे discuss when we come to case laws. But meanwhile, please read up on this. Okay, read a few good articles and try to understand what is the MTP Act and what is the whole controversy of Roe versus Wade and how it has been overruled in Dobbs versus Jackson. ठीक है? Sounds good? Please do it for yourself क्योंकि ये आने के chances हैं exam में. Okay? So ठीक है. अभी कुछ केसेस बचे, लेट मी क्विकली कवर. ओके, एक्चुअली काफी बचे हुए हैं. ठीक है, फिर हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे जहां पे कोर्ट ने कहा है कि देयर इज नो राइट टू हैव एज मेनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज वन चूजेस, ठीक है. अभी ये रिसेंटली भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी वापस से पॉपुलेशन है वो वापस आ रही है ना, कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ठीक है. आपके पर्सनल व्यूज हो सकते हैं कि पर्सनल पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए कि नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में, और भी एक दो केसेस थे, कि सी नोबडी कैन बी फोर्स्ड नॉट टू हैव चिल्ड्रन, ठीक है, वो दैट इज ट्रू. बट उन्होंने कहा कि यू डू नॉट हैव द राइट टू हैव एज मेनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज यू वांट एंड क्लेम ऑल द अदर फैसिलिटीज एज वेल, ठीक है. तो जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में कोर्ट ने कहा था कि disqualifying somebody who has more than 2 living children from holding an office in पंचायत is valid, ठीक है. तो सी अभी भी अगर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आता है तो ऐसा नहीं लिख सकते कि nobody can have more than 2 children, या आप उसे ना तो एनफोर्स कर सकते हो एंड ना ही you can tell somebody what to do. What would be done by that bill would be कि those people will not be eligible for things, ठीक है. जैसे गवर्नमेंट की अगर कोई बेनिफिशियल स्कीम चल रही है, वेलफेयर स्कीम चल रही है, या फिर अगर फॉर एग्जाम्पल जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, होल्डिंग एनी गवर्नमेंट पोस्ट, उस चीज में वो आपको इनएलिजिबल कर सकते हैं, ठीक है, कि आप उस चीज में अप्लाई करने के लिए या उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए इनएलिजिबल हो, ठीक है. तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी अगर आया तो इट विल बी बेस्ड ऑन सिमिलर लाइंस. ओके, सो सिमिलर थिंग वाज अपहेल्ड इन जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा कि अगर हम बोल रहे हैं कि पंचायत में जो पंच होगा that could only be a person who do not have more than 2 living children, then that is a valid condition, ठीक है. फिर और दूसरी अंडरस्टैंडिंग है कि राइट ऑफ अ अडल्ट पर्सन, अ पर्सन हु इज ओवर द एज ऑफ 18 years टू स्टे इन अ लिव इन रिलेशनशिप, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है. ये इस कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट बोलते हैं क्योंकि जनरली क्या होता है कि if people are living in live-in relationships or if they are married outside their caste, then the society, their families and all of that, they require protection from them. इसीलिए cases कोर्ट जाते हैं. ऐसा नहीं कि कोई एक्चुअली जा रहा है डिक्लेयर कराने की live-in relationships should be a fundamental right, ठीक है. वो इसी कॉन्टेक्स्ट में होता है कि the state should protect such persons because every person has a right to decide what they want to do, ठीक है. So all adult persons have the right to be in live-in relationship also and that is a right to their personal liberty, ठीक है. एक और चीज आई थिंक जो मैंने यहाँ ऐड नहीं की है, जो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, इज राइट टू मैरी, ठीक है. राइट टू मैरी इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. दिस वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ
शफिया जहान वर्सेस अशोकन। सुना होगा आपने इसका नाम। 2000 का जजमेंट है। इस केस में क्या था कि there was a Hindu girl, 2018, sorry, and she converted to Islam, and then thereafter she got married to a Muslim man. ठीक है? She was an adult, she was well in her 20s, and she was a medical student. ठीक? तो इस केस में जो इनके पिताजी थे, they went to the High Court of Kerala, and he said कि आपको habeas corpus petition के बारे में पता होगा, right? Habeas corpus petition क्या होती है? Habeas corpus आप प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, कि प्रेजेंट दी बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मिसिंग पर्सन होता है, अगर कोई पर्सन यू कैन नॉट फाइंड अ पर्सन, तो उसके रिलेटिव्स या जो भी लोग हैं वो कोर्ट में जाके हीबियस कॉर्पस पिटिशन आर्टिकल 32 के अंदर फाइल कर सकते हैं, ये बोल के कि वी कैन नॉट फाइंड दिस पर्सन एंड द कोर्ट शुड डायरेक्ट दिस पर्सन टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट। ठीक है, तो मिसिंग पर्सन के केस में भी इट इज एक्चुअली वेरी यूज्ड। तो इस केस में इनके पिताजी जो थे वो मिसिंग पर्सन्स कंप्लेंट फाइल करने चले गए कि हर डॉटर हैज बीन अबडक्टेड बाय दिस मुस्लिम मैन। ओके, Kerala High Court gave a very controversial and a very sad judgment about how Shafia Jahan, she should be returned, to her father's house and all of that. They totally disregarded the fact that she's over the age of 18 years and she has the right to choose whether she wants to convert and whether she wants to live with somebody or not. ठीक है, तो जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू मैरी इज अ फंडामेंटल राइट, सो एनीबडी हु इज ऑफ अ मैरिजेबल एज, यानी कि जो लीगल एज हमारे लॉ में सेट है, उसके बाद अ पर्सन कैन डिसाइड एंड दे बिकॉज दे हैव अ राइट टू मैरी एंड दैट इज अ फंडामेंटली प्रोटेक्टेड राइट। ठीक, तो शाफिया जहान वर्सेस अशोकन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑन द इशू ऑफ राइट टू मैरी। राइट टू गो अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट, हम डिस्कस कर चुके हैं। मेनका गांधी के केस में कोर्ट ने बोला था। राइट अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन, ठीक है, जैसे अगर पुलिस ने किसी को इलीगली डिटेन किया है विदाउट एनी लीगल बैकिंग, देन दैट इज आल्सो अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। इस पर तो बहुत ही सारे केसेस हैं, मैंने दो ही लिखे हैं, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जहां पे कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए थे कि आप किसी को कैसे अरेस्ट कर सकते हो, एंड डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, अनदर लैंडमार्क केस विच लेड डाउन द प्रोसीजर फॉर अरेस्ट। ठीक है, इन दोनों केसेस के बाद पर्टिकुलरली आफ्टर डीके बसु सीआरपीसी वाज अमेंडेड। ठीक है, अगर आपको याद हो कि सीआरपीसी में 41A, 41B, 41C, वो जो सेक्शंस हैं जो बात करते हैं अरेस्ट के सेफगार्ड्स की, दे वर अ रिजल्ट ऑफ दीज वेरी लैंडमार्क केसेस। ओके, फिर है आपका प्रिजनर्स राइट। ठीक है, मैं ये अब नेक्स्ट क्लास में लूंगी।